Hi students. So we are moving on towards the next chapter of our English grade 9, that is the sound of music. And this chapter is divided into the two parts. So today we are going to learn about part 1, and that is of Evelyn Glennie. She is a musician. I would like to introduce you to the Evelyn Glennie, a short introduction of her, and then we will start learning about how she moved on with her life and how she expressed her music, how she came to the musical world, and what was the main flaws of her. Okay, so Evelyn had started her career, and we are going to learn about her in this chapter. She was not a musician, she was not a musical artist, but she is right now a great percussionist. I will show you that what does a percussion instrument actually include. I have an image and I will keep the image, you can see over there. So here you can see that which kind of musical instruments are included in percussion family, and this were the all instrument which our Evelyn Glennie used to play. So she used to play one of these, or she used to play all of this maybe. So she has done many shows. She has collaborations with the music companies, and she has also written her own autobiography, which is named Good Vibrations and My Autobiography. So she has performed the scenes. Has television appearances. She has also done the films. So she has a great career in spite of her big flaws, and we will understand what was the actual flaw of her. So we are begin with the chapter. Here the chapter starts with Evelyn Glennie listen to sound without hearing it. So हमें इस चैप्टर का आइडिया तो मिल ही गया होगा कि without hearing she was able to listen this sound. That means she was deaf. Yes, indeed she was deaf. So before you read, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. So here we can see that she was the one person who cannot listen to the music, but indeed she used to feel that music, and that feeling of the music helped her to play those percussion instruments over there. So we can say, read the following account of person who fought against a physical disability and made her life a success story. So we can say that everyone has that some person who helps you to find out your own stuff, to find out that what capability you have in yourself. So this is a short story over here written by Miss Deborah Cowley, and she was a book author, she was a book writer. Once you get famous, you always get calls from the people. Once you just take out your skills outside the world, people used to call you, people wants to know what is your biography, autobiography, etc. So here she has written some small story that how she came to this industry, how being a deaf she was able to express her feelings with the music. So we are beginning with the chapter, and here I have highlighted all the hard words, and some of the meanings are given, some of are not, so I have written that personally over there. Starting out with the chapter. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. So यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, एंड दैट सिचुएशन इज ऑफ अ ट्रेन प्लेटफॉर्म, मतलब रेलवे स्टेशन है, एंड दिस इज़ नॉट एन इंडियन रेलवे स्टेशन. शी वॉज ब्रिटिश. सो वहाँ पे ट्रेन्स एंड ट्यूब्स दोनों घूमते हैं. तो शी वॉज देयर एट अ प्लेटफॉर्म. जॉस्टल मतलब रफली पुशिंग. मुंबई का क्राउड सबको पता ही है कि हाउ इज़ देयर द रेलवे स्टेशन. वैसे ही यहाँ पे एक जॉस्टल था जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर चल रहा था. अ स्लाइट गर्ल, स्मॉल एंड अ थीन यंग लुकिंग गर्ल who was 17 years old was nervous yet excited. जब आप कोई चीज़ परफॉर्म करने स्टेज पे जाते हो, या कोई कैमरा आपके सामने आ जाता है, या यू हैव टू परफॉर्म इन अ बिग crowd, in front of a big crowd, how you will feel?
तो यहाँ पे एवलिन की भी फीलिंग वैसी ही जा रही थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. So यहाँ पे एक बात की गई है कि she was going to join her Royal Academy of Music which was in London. सबको पता चल गया होगा कि she was standing at a London railway platform. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. मतलब वो totally deaf थी. She was not a part of deaf या कुछ कम सुन पाती थी या कुछ ही नहीं. Like she was not able to listen to anything. और ये बात कब पता चली? We will come to know in the second paragraph. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. मतलब वो बच्चे कभी पैदा होते हैं, वो बहरे पैदा होते हैं, गूंगे पैदा होते हैं, वो हमें पता नहीं चलता जब तक वो 1-1.5 साल के नहीं हो जाते. तो यहाँ पे कब पता चला कि 8 years old की थी. सेम हमारी हेलन केलर के साथ हुआ था. बचपन में शी वॉज नॉट यूज टू बी ब्लाइंड. हेलन केलर हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, शी हैज़ ऑल्सो अ डिफरेंट स्टोरी. बट दोनों की थोड़ी थोड़ी स्टोरी मैच होती है कि बचपन से नहीं पता चला था. एज सुन एज दे वर बॉर्न नहीं पता चला था कि हेलन केलर वॉज ब्लाइंड एंड एवलिन ग्लेन वॉज डेफ. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. मतलब आपको बुलाया जाता है, कभी कभी कोई ऐसा होता है कि अनसुना कर देता है तो वो बहरा नहीं हो जाता है, लेकिन हमें सुनने को तो यही बोल मिलता है कि बहरे हो, सुनाई नहीं देता है. ऑफ कोर्स वहाँ पे भी वही चीज़ हुई थी. तो यहाँ पे एक बात हुई थी कि उसकी मम्मी ने यहाँ पे उसको बुलाया पियानो प्ले करने के लिए. एंड एट द टाइम शी डिडंट मूव फ्रॉम हर प्लेस. तब पता चल गया कि मे बी शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. So Isabel Glennie, the name of Evelyn's Glennie mother. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. मतलब स्कूल में होते हैं, साथ साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि उसकी हेडमिस्ट्रेस ने बोला कि आपका चाइल्ड बहुत स्पेशल है, शी शुड बी सेंड टू द स्पेशल स्कूल. तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स को बुला के ये चीज़ कही गई. डिट्रॉइटेड का मतलब होता है ग्रेजुएटली कम मार्क्स आने लगे थे उसके, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू लिसन, तो हाउ शी विल बी एबल टू लर्न समथिंग. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of a gradual nerve damage. तो उसको क्या हुआ था कि वो पैदा होते ही बहरी नहीं थी, लेकिन उसके ब्रेन में जो स्ट्रिंग जाती है ना हमारी सुनने की, वो शी वॉज नॉट एबल टू लिसन. तो वहाँ से उसके जो थे लाइक वी कैन से जो नर्व थी वो नर्व काम नहीं कर रही थी वहाँ पे. तो ड्यू टू दिस शी वॉज हैविंग एन hearing aids issue, and finally she was sent to a school for deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब जब शुरुआत होती है, जब आपको कोई नॉर्मल वर्ल्ड से एक ऐसी जगह पे डाल दिया जाता है जहाँ पे यू फील लाइक कि यू आर हैंडीकैप, यू आर स्पेशल, यू आर कंसिडर्ड एज लाइक अनवांटेड चाइल्ड, कभी कभी फीलिंग आ जाती है. तो यहाँ पे भी शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. अब जब कोई जाता है कहीं पे तो वहाँ पे उनको पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअली क्या है, एंड शी आंसर्ड दैट हर इंटरेस्ट वाज इन म्यूजिक. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू. उसने देखा, शी वॉज नॉट लिसनिंग टू द म्यूजिक, बट उसने देखा कि वो xylophone बजा रही है तो मुझे भी उसको प्ले करना है. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट परकॉशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. होता है ना कभी लाइक अंधेरे में चिराग मिल जाता है, तो यहाँ पे भी उसके साथ वही चीज़ हुई. परकॉशनिस्ट, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला, बहुत सारे हैं जो आपने पिछले इमेज में देख लिए होंगे सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको परकॉशन फैमिली मैंने पूरी दिखा दी आपको. जो ये सारी चीज़ें बजाता है उसे परकॉशनिस्ट कहा जाता है. इट्स परकॉशनिस्ट. ओके, सो सारे टीचर्स जो थे उन्होंने बोला कि कैसे कर पाएगी तू, मतलब उसको डीमोटिवेट किया. सो डीमोटिवेशन लीड्स टू अ ग्रेट मोटिवेशन. और वहाँ पे एक परकॉशनिस्ट मिस्टर रॉन फॉब्स उसको मिले. वहाँ पे उनको पता चला कि शी कैन बी गुड, शी कैन बी
like play whatever she want. So उन्होंने शुरू किया. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. तो उन्होंने उसको बोला कि अपने कान है पर कानों से सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज म्यूज़िक इज़ अ स्टफ यू फील द वाइब्रेशन, यू फील द नोट्स. सो यहाँ पे भी रॉन फॉब्स ने वही चीज़ उसको कही. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up. ड्रम्स जब बजने लगते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशंस आते हैं, लोअर वन, हायर वन, वो सारे उसको धीरे धीरे पता चलने लगे. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. मतलब उन्होंने ये बोला कि मैंने अपने जो बॉडी थे उसमें डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे हम ड्रम बजाते हैं तो हाथ में वाइब्रेशन फील होते हैं, वी कैन फील द वाइब्रेशन इन आवर बॉडी. तो उसने पूरी अपनी बॉडी में वो सारे वाइब्रेशंस फील करने लगे. एंड रेस्ट वॉज द शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. तो शेयर डिटर्मिनेशन का मतलब होता है एक कीन डिटर्मिनेशन, एक लाइक ग्रेजुअल डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूअस. मतलब उसने इस चीज़ को गिव अप नहीं किया. यहाँ पे शी प्लेड इट विथ हर ओन लाइक विल पावर, जिसे कहा जाता है कि शी हैड इंटरेस्ट इन दैट एंड शी परस्यूड दैट. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16. टूर मतलब वो घूमी, यूके पूरा घूमी. लंदन यूके में फॉल करता है, तो वो उसने अपनी शुरुआत वहाँ से करी. यूके में उसने बजाना शुरू किया और बाय द टाइम शी वॉज जस्ट 16, वो सिर्फ 16 साल की थी. एंड आपने देखा कि 17 ईयर्स की गर्ल की एज शुरू होती है चैप्टर के स्टार्टिंग में. She had decided to make music her life. अब फाइनली उसको अपना मिल गया था पोटेंशियल कि अब मैं अपना म्यूज़िक में ही आगे बढ़ाऊंगी. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे म्यूज़िकल शोज़ होते हैं, वैसे वहाँ पे भी लंदन में म्यूज़िकल शोज़ हुए होंगे और उसने वहाँ पे ऑडिशन दिया और उस ऑडिशन में उसके इतने मार्क्स आए, हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच शी माइट हैव स्कोर्ड. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. अब पहले वो ग्रुप में परफॉर्म करती थी, तो ग्रुप में परफॉर्म करना मतलब पूरा क्रेडिट ग्रुप में जाता है, भले किसी एक की मेहनत हो. फिर उसने क्या किया, ग्रुप में से बाहर निकल के एक ग्रेजुअल सोलो परफॉर्मेंस उसने शुरू कर दिया. सोलो मतलब अकेले परफॉर्म करना उसने शुरू कर दिया. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. मतलब उसका जब 3 साल का कोर्स ख़त्म हुआ रॉयल एकेडमी में, तब तक उसको बहुत सारे टॉप अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. उसने यहाँ पे ऐसा बोला कि दिस इज़ नॉट माई हेरोइक अचीवमेंट, नॉर्मल चीज़ है. उसने यहाँ बहुत अच्छी लाइन कही है कि if you work hard and know where you are going, you will get there. आपको पता है, अगर आपको if you know कि आपने इस चीज़ के लिए हार्ड वर्क किया है, तो आपको जहाँ जाना है, आपकी डेस्टिनी, आपका हार्ड वर्क आपको वहाँ पे पहुँचा ही देती है. आपने फेमस डायलॉग सुना भी होगा कि किसी चीज़ को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. So this is the word she spoke in English. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule. मतलब इतनी सारी जगह पर से उसको ऑफर्स आने लगे कि प्लीज़ कम एंड प्लीज़ परफॉर्म ओवर हियर, प्लीज़ प्ले समथिंग फॉर अस, प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दिस. जैसे मैंने स्टार्टिंग में उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, शी स्टार्टेड हर बैंड एंड ऑल. तो आप अगर उनके बारे में विकिपीडिया पे देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट हाउ मैनी शोज शी हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without
hearing. In our 2-hour decision, she never missed a word. Man with a bushy beards, we gives me troubles. She laughed. तो यहाँ पे एक छोटा सा idiom उन्होंने कहा है कि man with bushy beards, जो मैन होते हैं वहाँ पे जो आते हैं उनके देखने के लिए, तो उनकी जिनकी दाढ़ी वगैरह होती है वो उनको थोड़ा सा परेशान करते हैं. She just gets like uncomfortable, we can say. So because she was suffering from her hearing disabilities, so she was little bit like थोड़ा सा कहते हैं ना नर्वस हो जाते हैं. She fails to read their lips and facial expressions. That's why, because sometimes we used to feel someone by their lips, by their facial expressions, by their eyes, etc. सो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि मैन विद बशी बेस्ट, जिनकी ऐसे घनी घनी दाढ़ी होती है, उनका मुंह कैसे देख पाएगी. सो शी वॉज जस्ट इन लाइक फनी वे शी टोल्ड. यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है एवलिन का. यू कैन सी इट इज़ ऑफ अ यंगर एज. आपको मैं लास्ट में इमेज रखूँगी उसका करंट इमेज अभी का. यू विल बी एबल टू नो. हियर इज़ द इमेज. शी इज़ प्लेइंग अ xylophone ओवर इट. So it is not just watching the lip, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. तो वो रहती थी लंदन में, but she had the mother tongue as a Scot. तो स्कॉटिश वे में she used to speak that. फिर उन्होंने बोला my speech is clear because I could hear till I was 11. तो वो यहाँ पे ऐसा बोल रही कि मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी. उन्होंने ऐसा बोला है. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो यहाँ पे उनकी थोड़ी सी mastery skills दिखाई गई है कि she also has learned French, and of course basically living in London UK you have to learn French because वहाँ पे बहुत सारे लोग English कम French का use ज़्यादा करते हैं. But yet other than that she has a master basics in Japanese also. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in my skin. मतलब कहते हैं ना, जो कहते हैं उनका हॉबी होता है उनकी नस नस में थी और म्यूज़िक उनकी रग रग में दौड़ रहा था. तो शी वॉज सो डेडिकेटेड टू हर हॉबी. स्किन पे तो जा रहा था माई चिक बोन्स, मतलब हर स्माइल एंड इवन माई हेयर. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. जो vibrations आते थे, जो echoes आते थे, वो जो music play करते थे, वो जब instrument play करते थे, उस instrument की जिस तरीके से यहाँ पे explain किया है, that is wonderful. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. हमारे इंडिया में ऐसा होता है यूजुअली wherever we perform we always used to remove our shoes because हम उससे एक पवित्र जगह मानते हैं. बट आप देख सकते हो कि फॉरेन कल्चर में भी she has done like that because she wanted to feel those vibrations. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. तो उनको एक सोलो परफॉर्मेंस का एक अवार्ड भी मिल चुका है. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearings. ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा before you read में, ये यहाँ पे दिया गया है. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So यहाँ पे ये कहा गया है कि like she is a, जैसे कहते हैं ना कि सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक खिड़की तो खोल ही देता है. With the problems, with your every problems, you always get a solution with you. तो यहाँ पे भी वही चीज़ बहुत ही फेमस प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने उसके लिए कही है कि भगवान ने उसकी जो हियरिंग है वो ले ली, लेकिन एक गिफ्ट छोड़ के गए. वो गिफ्ट थी प्लेइंग म्यूज़िक के. तो आप कोई भी फेमस पर्सन की बात कर लीजिए जिनके पास ये डिसेबिलिटीज़ है, यू विल नेवर फाइंड देम डिसेबल. दे आर परफेक्टली फिट एंड फाइन टू बी reacted as a normal people in the society, but society never takes them as a normal. That is the only drawback of the society. Okay, next,
एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक, मतलब उसको काम करना बहुत पसंद होता है. I have just got to work often harder than classical musician, but the reward are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. ये बहुत ही अच्छी चीज़ रही है उनकी कि उन्होंने जेल में और हॉस्पिटल में अपने कॉन्सर्ट्स फ्री दिए हैं. लोगों को उसने इंस्पायर किया कि वहाँ जाके कि आप भी मेरी तरह कुछ मुझसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, कुछ मोटिवेशन ले सकते हो. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. जो वो कहते हैं ना कि अपने टाइम पे जो उन्होंने फेस किया, शी डजंट वांट दैट एज चिल्ड्रन टू फेस एग्जैक्टली दो स्टफ व्हाट शी फेस्ड आउट. यहाँ पे नाम दिया है एंड रिचलिन ऑफ द बेथहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो. मतलब शी हैज़ बिन सो ट्रू इंस्पिरेशन फॉर दोज चिल्ड्रन कि बच्चे डीमोटिवेट नहीं होते थे. जैसे एवलिन को उसकी टीचर्स ने डीमोटिवेट किया, वैसे एवलिन उससे सीखी कि नहीं, मुझे जहाँ पे भी मैं जाऊँगी मैं डीमोटिवेट नहीं करूँगी बच्चों को. एंड फाइनली शी बिकेम द मोटिवेशन फॉर दोज चिल्ड्रन हु वर डेफ. और उन बच्चों को ऐसा लगता था उसको देख के कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं हो. एंड दैट वॉज रियली वेरी नाइस टू से. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And that is the best thing. You listen. When you have that kind of disability and you don't accept that disability, you are not like कि मैं मानने के लिए रेडी ही नहीं हूँ कि मेरे पास ये है, और आप आगे बढ़ते जाओगे. तो जब आपको लगता है कि ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते. एंड दैट इज़ द वे पीपल यूज टू टेल हर आई कैन. एंड नॉट द लेस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. तो यहाँ पे जो कहा गया है कि जिस तरीके के शी हैज़ बिन एन इंस्पिरेशन टू द पीपल, इट्स एग्जैक्टली एनॉर्मस. एनॉर्मस का मतलब होता है एक्सपांसिव, एट इन अ वेरी लार्ज इन अ साइज, क्वांटिटी ऑफ प्लेजर टू द मिलियंस. मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल लोगों का वो एक रोल मॉडल बनी है, एक वी कैन से आइडल बनी है कि ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं. बिकॉज देर आर मैनी पीपल जो हट्टे कट्टे होते हैं जिनको सिर्फ बोलना आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और करते क्या है, घर पे बैठ के सिर्फ बेतुकी बातें करते रहते हैं. और कुछ लोग होते हैं एवलिन जैसे, हेलन केलर जैसे, कि जो कुछ बोलते नहीं हैं बट दे हैव फेस्ड मैनी थिंग्स इन देयर लाइफ एंड फाइनली what they achieve, the whole world can see that. So we can just give the moral of the story to this. So the moral of the story is that we should never give up. Life is full of challenges, but it depends upon us whether we take up and face the challenge or just sit behind isolated. Evelyn Glennie is a world famous percussionist. She does not listen to music, she feels it. Hard work never goes useless. We human beings are wisest livings on the earth, and we should use our wisdom to achieve something in our lifetime. We should never fear from working hard. Rather, we should be ambitious to reach our goal. And this is what this chapter taught us. Actually, I showed the real images of Evelyn Glennie. I hope you have liked it. Give thumbs up. Thank you.